Hello students, we were doing our chapter percentage and its applications. Today we will do question number 5 of exercise 10.2, that is, in an orchard 18% of trees are mango trees. If the total number of trees in the orchard is 600, find the number of other types of trees in the orchard. Okay students, orchard matlab that is a type of garden. 18% of trees are mango and total number of trees is 600. Total trees equals to 600. Trees of mango equals to 18% of 600. Now 18 upon 100 into 600, that is equals to 108. So number of trees in that garden equals to 108. Then we have to find the number of other types of trees. Other types of trees, it means सारे ट्रीज में से मैंगो ट्रीज को सब्ट्रैक्ट करें, सो विल गेट 492 अदर टाइप्स ऑफ ट्रीज. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ ट्रीज गिवन है, दैट इज 600 एंड गिवन है कि 18% ऑफ ट्रीज किसके हैं, मैंगो के हैं. सो हमें बाकी के जो अदर टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है. सो टोटल ट्रीज इक्वल्स टू 600, ट्रीज ऑफ मैंगो इक्वल्स टू 18% ऑफ 600. सो नंबर ऑफ ट्रीज आ गई 108. सो नंबर ऑफ ट्रीज 108 आ गई. सो अदर टाइप्स ऑफ ट्रीज फाइंड करने हैं. सो टोटल नंबर में से नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 600 माइनस 108, दैट इज इक्वल्स टू 492. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40% ऑफ द टीचर्स इन स्कूल आर फीमेल एंड द नंबर ऑफ मेल टीचर्स इज 54. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन दैट स्कूल. एक स्कूल में टोटल टीचर्स में से 40% फीमेल टीचर्स है और गिवन है कि नंबर ऑफ मेल टीचर्स 54 है. सो टोटल टीचर्स फाइंड करने हैं. एज इट इज क्वेश्चन हमने किए हैं सेम. फर्स्टली टोटल टीचर्स को क्या मान लेंगे, 100%. टोटल टीचर्स इक्वल्स टू 100% एंड फीमेल टीचर्स equals to 40%. Female teachers 40% है, it means male teachers that is equals to 100% minus 40% equals to 60%. It means male teachers हैं उस स्कूल में कितने हैं, 60%. Now in the question it is given that number of male teachers is 54. Now according to question, number of male teachers equals to 54. It means ये 60% में किसके इक्वल है, 54 के. So 64 equals to 54, 1% equals to 54 upon 60, and we have to find the value of total number of trees and total number of teachers, and total number of teachers equals to 100%, means 100% equals to 54 upon 60 into 100. When we solve it, we get our answer 90. So total number of teachers in that school is 90. Students, given है कि स्कूल में फीमेल टीचर्स 40% हैं और मेल टीचर्स नंबर में 54 हैं. सो हमें टोटल नंबर ऑफ टीचर्स फाइंड करने हैं. सो फर्स्टली टोटल नंबर ऑफ टीचर्स क्या सपोज कर लिए, 100%. फीमेल टीचर्स गिवन है 40%. इट मीन्स मेल टीचर्स कितने हुए, 100% minus 40%, that is equals to 60%. But according to question it is given that number of male teachers equals to 54. So 60% equals to 54, 1% equals to 54 upon 60, 100% equals to 54 upon 60 into 100, that is equals to 90. So total number of teachers in that school is 90. Next question is question number 9 of exercise 10.2, that is the total budget of a state was rupees 7,500 crore. Out of this rupees 672 crore was spent on education. What percent of total budget
वाज स्पेंट ऑन एजुकेशन। इट मीन्स एक स्टेट का टोटल बजट गिवन है, वो है ₹7,500 करोड़ और उसमें से एजुकेशन पे ₹672 करोड़ स्पेंड किए गए हैं। इट मीन्स ये पूछा गया है इसमें कि टोटल बजट का कितने % एजुकेशन पे खर्च हुआ है। नाउ टोटल बजट इक्वल्स टू ₹7,500 करोड़, budget spent on education that is equals to ₹672 crore. So percent of total budget that was spent of education पे रुपीस खर्च हुए हैं 672 करोड़ और टोटल बजट था 7,500 करोड़ और परसेंट फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट का साइन, 20 से 20 कैंसिल, सो 672 अपॉन 75%. And when we divide 672 by 75, then we will get our answer 8.96%. So 8.96% of total budget was spent on education. Okay students, total budget given है, ये given है कि एजुकेशन पे कितना खर्च हुआ है, तो उसका परसेंट फाइंड करना है. सो एजुकेशन पे जो खर्च हुआ है वो टोटल बजट इंटू 100% एंड दैट इज इक्वल्स टू 8.96%. And next part of this chapter is profit and loss. So student, profit and loss पता करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट कौन सी प्राइस पे होता है, लॉस कौन सी प्राइस पे होता है. सो फर्स्टली कॉस्ट प्राइस, इट इज़ द मनी पेड टू बाई द गुड्स. सामान खरीदने के लिए जो मनी हम देते हैं, जिस मनी से हम सामान खरीदते हैं, किसी वस्तु का कितना मूल्य दिया, वो उसका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस, इट इज़ द प्राइस एट विच द गुड्स आर सोल्ड. जिस प्राइस पे हम सामान को सोल्ड करते हैं या बेचते हैं वो क्या होती है, सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में लिखते हैं CP एंड सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में लिखते हैं SP. ओके, नाउ प्रॉफिट कब होता है, जब हम कोई जो सामान है वो कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचते हैं, तो इसका मतलब वो वहाँ क्या होगा, प्रॉफिट. इट मीन्स सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देन द सेलर हैज़ ए प्रॉफिट और गेन. नाउ प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. इट मीन्स प्रॉफिट फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से. सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से तभी प्रॉफिट होता है. सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. और प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना हो तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%. स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होते हैं. सो इनका परसेंट फाइंड करना है तो किस पे फाइंड करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे. प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%. लॉस कब होता है, जब सामान ज़्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं. इट मीन्स कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देन द सेलर इनकर्स ए लॉस. लॉस कैसे फाइंड करते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. इट मीन्स क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या होती है, ज़्यादा होती है और सेलिंग प्राइस लेस देन होती है उससे. सो लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%. प्रॉफिट भी कॉस्ट प्राइस पे होता है एंड लॉस भी हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है. सो इनका परसेंट किस पे फाइंड करेंगे, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे. ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने हैं. कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट. प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100% और लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%. फर्स्टली प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे तो प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, प्रॉफिट परसेंट के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस कैसे फाइंड करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. Okay students, thank you.